lecture we will discuss about the history of the accounting. Then after we will discuss about the definitions of accounting, who is introduced the dual entry system, then characteristics, objective, advantages and disadvantages. So now today discuss about their basic terms. It is also known as terminology. So see बेटा, अकाउंटिंग के अंदर यहाँ पर हमारे पास कहीं ऐसे वर्ड्स है जो पर्टिकुलरली अकाउंट के लिए यूज होते हैं. सी देयर आर दी मैनी मोर वर्ड्स is given to compulsory using in the accounting. So first of all we know about the each and every terms and their definitions. So today we will discuss about our terminology of accounting. See, there are 45 terminologies. Out of them 20 to 25 terminology is basic terminology and remaining is subtype of terminologies. So first of all we will discuss about our first terminology, that name is business transactions. That name is business transaction. Okay, the definition is business transaction means exchange of goods and service, exchange of goods and service of business between two or more person. Business transaction means exchange of goods and service of business between two or more person. माने कि यहाँ पर जनरली ये बोला गया है इसके डेफिनेशन में कि जो बिजनेस जो होता है हमारा बिजनेस, उस बिजनेस जो हम बिजनेस करें उसके गुड्स या सर्विसेज हम दो या दो से ज्यादा लोगों के साथ क्या करें बेटा, एक्सचेंज करें, उसको हम कहते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस. दैट इज कॉल्ड एज बिजनेस ट्रांजैक्शन. ओके, एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं डेफिनेशंस. बिजनेस ट्रांजैक्शन मींस exchange of goods and service of business between two or more person. Okay, there are the two types of the business transactions. There are how many types of the business transactions? Two types of business transaction. First one is economic transaction. See बेटा, first number पे जो है वो आपके पास है economic transactions and second one is non-economic transaction. First is economic transaction and second one is a non-economic transaction. So what is the meaning of the economic transaction? Economic transaction का definition क्या होता है? A transaction which can be measured in terms of money. A transactions which can be measured in terms of money, that is called economic transactions. ऐसे ट्रांजैक्शन जिसको हम मनी मेजर्स के अंदर दिखा सके, जिसको हम मनी के अंदर उसका मॉनेटरी वैल्यू हम ढूंढ सके या तो दिखा सके, उस सारे ट्रांजैक्शंस को हम इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस कहते हैं. एंड ओनली इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इनटू द अकाउंटिंग. ओनली इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इनटू अकाउंटिंग. सी the second number, non-economic transaction. The second number is non-economic transactions are transactions which cannot be measured in term of money. ऐसे transactions जिसको हम measures नहीं कर सकते, जिसका हम value नहीं दिखा सकते, जिसको हम value के अंदर नहीं दिखा सकते हैं, वैसे सारे transactions को हम यहाँ पर non-economic transactions कहते हैं. All the transactions are called as non-economic transactions. and non-economic transactions cannot be recorded in accounting.
Non-economic transaction are not recorded in accounting. अकाउंटिंग के अंदर हम नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस कभी भी हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते. ओनली इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इनटू द अकाउंटिंग. ये आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि which transactions are recorded into the accounting. So आंसर आएगा इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन. और दूसरा which transaction are cannot be recorded in accounting, तो उसका आंसर आएगा नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन. सी बेटा फिर से रिपीट करते हैं. बिजनेस ट्रांजैक्शंस. बिजनेस ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? बिजनेस ट्रांजैक्शंस मींस exchange goods and service of business between two or more person. There are the two types of the business transactions. First one is economic transaction, second one is non-economic transaction. Definitions of economic transaction: a transaction which can be measured in term of money, that is called economic transaction. A transaction which cannot be measured in term of money, it is called non-economic transactions. Economic transactions are recorded into the accounting and non-economic transactions are not recorded into the accounting. Then after number two पर है हमारे पास यहाँ पर event. Event means, event का मतलब क्या होता है बेटा? Event means situations or result created from the transactions. Situations or results created from transactions. ट्रांजैक्शंस का रिजल्ट अथवा तो सिचुएशंस जो क्रिएट होता है ट्रांजैक्शन में से, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? इवेंट. एन इवेंट इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंसिडेंट. इवेंट को हम एक इंसिडेंस की तरह पर हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. ओके, फिर से इवेंट का मतलब क्या होता है? इवेंट मींस सिचुएशंस और रिजल्ट्स क्रिएटेड फ्रॉम ट्रांजैक्शंस. सिचुएशंस और रिजल्ट्स क्रिएटेड फ्रॉम ट्रांजैक्शन. ट्रांजैक्शन में से जो सिचुएशंस और रिजल्ट्स क्रिएट होते हैं उसको हम इवेंट कहते हैं. एन इवेंट इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंसिडेंट. लाइक सी, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड्स परचेज फॉर द 2000 rupees. The value of goods is 2000. Then their wages is 500 rupees. Wages कितना हुआ बेटा? 500. And it is sale from 5000 rupees. और ये सेल हमने कितने में किया? 5000 में. एक्चुअल में गुड्स कितने में हमें मिला? तो 2000 हमें गुड्स परचेज किया, उसको लाने के लिए हमने वेजेस के पे किया 500. So total amount of goods is 2500 and that selling amount is 5000. 5000 sales minus 2500, डिफरेंसिंग अमाउंट होता है 2500. that is called result. और इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? इवेंट कहते हैं. दैट इज कॉल्ड रिजल्ट. और इसको ही हम क्या कहते हैं बेटा? इवेंट कहते हैं. बोलो, पता चल गया? फाइनल. ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स. कैपिटल. कैपिटल का मतलब क्या होता है? When owner provide cash, goods and asset to commence the business. When owners provide cash, goods and assets to commence the business, that is called capital. That is called capital. जब बिजनेस का ओनर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट देता है. इन्वेस्टमेंट में कौन सी चीज आती है? ये तीन चीज. कौन सी? कैश, गुड्स एंड एसेट. जब बिजनेस का ओनर कैश, गुड्स एंड एसेट्स बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें प्रोवाइड करता है, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं. क्या कहते हैं? कैपिटल. फिर से एक बार देखें तो when owner provide cash, goods and assets to commence the business, to started the business, to beginning the business, that is called capital. That is called capital. उससे पूरा वाइसे वर्षा कंसेप्ट आपके पास है यहाँ पर ड्राइंग्स. उसके पूरा ऑपोजिट ड्राइंग्स माने कि जो हम ड्रॉ करते थे पहले वो वाला नहीं. यहाँ पर ड्राइंग्स कुछ अलग है. ड्राइंग्स का मतलब क्या है? यहाँ पर बिजनेस का ओनर कैश, गुड्स एंड एसेट्स क्या करता है बेटा? प्रोवाइड करता है टू कमेंस द बिजनेस. और यहाँ पर ओनर जो है वो अपने पर्सनल यूज के लिए
कैश गुड्स एंड असेट्स क्या करता है बेटा, ले जा रहा है, विड्रॉ कर रहा है। ओके, व्हेन ओनर विड्रॉ कैश गुड्स एंड असेट्स फॉर द पर्टिकुलर वर्ड, क्या है पर्टिकुलर वर्ड, पर्सनल यूज। सी बेटा, ओनर की दो लाइफ होती है, एक अपने बिजनेस की लाइफ जो वो ओनर है वो, और दूसरा है उसका पर्सनल लाइफ, पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों यहाँ पर डिफरेंट है, दे आर बोथ आर डिफरेंट वर्ड्स एंड डिफरेंट लाइफस्टाइल, नॉट अ बोथ सेम। So when owner withdraw cash, goods and assets for the personal use, it is known as drawings. It is known as drawings, and drawings indicates capital reduction. जब बेटा drawings बढ़ता है, increase होता है, तो हमारा capital reduce होता है, reduction होता है. So that's why we can say that the statement drawings indicate कैपिटल रिडक्शन। ड्राइंग्स आपको क्या इंडिकेट करता है कि हमारा कैपिटल कम हो रहा है, कैपिटल रिड्यूस हो रहा है। देन नेक्स्ट वन इज लायबिलिटी। नेक्स्ट वन इज लायबिलिटी। ये वर्ड से आप सब लोग फेमिलियर हो घर के अंदर से ही। गुजराती में આપણે એને કહીએ તો બેટા કહીએ દેવું। શું કહેવાય? દેવું। इतना माने कि આટલું દેવું થઈ ગયું છે એવું તમે ઘરમાં બોલતા જશો। इट इज कॉल्ड इंग्लिश वर्ड्स लायबिलिटी। तो क्या है उसका डेफिनेशन? अमाउंट पेएबल बाय द आउटसाइडर ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड लायबिलिटी। अमाउंट पेएबल, पेड नहीं किया बेटा, पे करना है। अमाउंट पेएबल बाय द आउटसाइडर ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के बाहर के लोगों को जो हमें अमाउंट पेड करना है, उस अमाउंट को, उस टोटल अमाउंट को हम कहते हैं लायबिलिटी। दैट टोटल अमाउंट इज कॉल्ड लायबिलिटी। ओके, सी बेटा, देयर आर द टू टाइप्स ऑफ लायबिलिटी। देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लायबिलिटी? टू टाइप्स ऑफ लायबिलिटी। फर्स्ट वन इज इंटरनल लायबिलिटी एंड सेकंड वन इज एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो ये दोनों वर्ड से ही आपको पता चलता है कि क्या लायबिलिटी आपको बोली जा रही है। इंटरनल, इंटरनल माने कि बिजनेस के अंदर का लायबिलिटी, बिजनेस की अंदर की लायबिलिटी को कहते हैं इंटरनल लायबिलिटी, और जो आउटसाइडर्स की थर्ड पार्टी की जो लायबिलिटी होती है उसको कहते हैं हम एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो इंटरनल लायबिलिटी को हम पढ़ते हैं, तो मैंने आगे यहाँ पर आपको कैपिटल में बोला कि कैपिटल का डेफिनेशन क्या है? When owners provide cash, goods and assets to commence the business, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ओनर आपको कैश, गुड्स और असेट्स प्रोवाइड कर रहा है। किसको प्रोवाइड कर रहा है? आपको, माने कि बिजनेस को। तो वो हो गया बेटा इंटरनल लायबिलिटी, वो हो गया हमारा इंटरनल लायबिलिटी। बिजनेस को उतने पैसे ओनर के पास से लिए हैं, तो वो हो गया उसका इंटरनल लायबिलिटी। देखो क्या बोला है? When owner of the business provide capital to the business, when owner of the business provide capital to the business, it is an internal liability of the firm. It is an internal liability of the firm. क्यों? तो ओनर जो होता है वही बिजनेस रनिंग करता है, और वो बिजनेस के अंदर का आदमी है, खुद का आदमी है बिजनेस का। उस हिसाब से उसको जो पैसा देना पड़ेगा in future, that is called internal liability. That is called internal liability. External liability क्या है? तो outsiders of the business, third party को जो हमें अमाउंट पे करना है उसको कहेंगे हम एक्सटर्नल लायबिलिटी। उसका डेफिनेशन क्या है? The amount payable by business to the third party. Which party? Third party. थर्ड पार्टी की माने कि ओनर इंटरनल पार्टी है, बिजनेस एक पार्टी है, और आउटसाइडर्स जो है वो थर्ड पार्टी है। तो द अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस टू द थर्ड पार्टी, अदरवाइज आउटसाइडर्स ऑफ द बिजनेस, इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल लायबिलिटी। इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी, ये दोनों लायबिलिटी के दो सब टाइप्स है। पहला सब टाइप्स होता है बेटा नॉन करंट लायबिलिटी, दूसरा सब टाइप्स होता है बेटा करंट लायबिलिटी। What is the meaning of the non-current liability? Those liability that time duration is more than the 1 year. Those liabilities which time durations of the payment is more than the 1 year, it is called
नॉन करेंट लायबिलिटी, इट इज कॉल्ड नॉन करेंट लायबिलिटी। देखिए तो हम डेफिनेशंस यहाँ पे क्या लिखा है, लायबिलिटी पेएबल, लायबिलिटी पेएबल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मोर देन दी 1 ईयर, एक साल से ज्यादा टाइम ड्यूरेशन होता है अमाउंट पेएबल करने का, उसको हम कहते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। और उसका दूसरा नाम है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, उसका दूसरा नाम है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी क्या है बेटा, लायबिलिटीज पेएबल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लेस देन दी 1 ईयर, ऐसी लायबिलिटी जिसका अमाउंट हमें पेएबल करना है एक साल से कम टाइम ड्यूरेशन के अंदर, उसका टाइम ड्यूरेशन एक साल से कम होता है पेमेंट का, उसको हम कहते हैं करंट लायबिलिटी, उसको हम कहते हैं करंट लायबिलिटी। उसका सेकंड नेम है शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, उसका सेकंड नेम है शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, जिसका टाइम ड्यूरेशन एक साल से ज्यादा हो, मोर देन दी 1 ईयर, उसको कहते हैं नॉन करंट लायबिलिटी अदरवाइज लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। जिसका टाइम ड्यूरेशन एक साल से कम हो उसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म लायबिलिटी अदरवाइज करंट लायबिलिटी। यहाँ पर हमने 1 to 7 यहाँ पर हमने डिस्कस किए, अब इसके आगे हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। So now we will discuss about our next terminology number 8, that is called assets. Okay, what is the meaning of assets? Assets word is also used in the previous terminology number 3 and 4, cash, goods and assets provided by the owner to the commence the business, that is called capital. When owner withdraw cash, goods and assets for the personal use, that is called the ड्रॉइंग्स। वहां पर असेट्स वर्ड था, तो ये असेट वर्ड आपको यहाँ पर पूरा पढ़ना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असेट्स? असेट्स मीन्स एनी सच टेंजिबल और इंटेंजिबल आइटम व्हिच इज ऑफ ओनरशिप ऑफ द बिजनेस एंड हैज इकोनॉमिक वैल्यू। असेट मीन्स एनी सच टेंजिबल जिसको हम देख सके, अदरवाइज इंटेंजिबल जिसको हम ना देख सके, वैसी आइटम अदरवाइज प्रोडक्ट विच इज ऑफ ओनरशिप ऑफ द बिजनेस, विच इज ऑफ ओनरशिप ऑफ द बिजनेस, उसकी ओनरशिप बिजनेस की होनी चाहिए, वैसी टेंजिबल और इंटेंजिबल आइटम्स एंड हैज इकोनॉमिक वैल्यू, और उसकी इकोनॉमिक वैल्यू माने कि रियलाइजेबल वैल्यू मिलनी चाहिए, उसको पर्टिकुलरली हम कहते हैं आइडेंटिकली इट इज कॉल्ड दी असेट्स। आइडेंटिकली इट इज कॉल्ड असेट्स। सी बेटा फिर से एक बार, असेट्स मींस एनी सच टेंजिबल एंड इंटेंजिबल आइटम व्हिच इज ऑफ ओनरशिप ऑफ द बिजनेस एंड हैज इकोनॉमिक वैल्यू। ओके, assets are classified by the following way. There are the 3 types of way of classifications of the assets. First one is non-current, that second name is long term, second one is current, that second name is short term, and third one is fictitious. Assets are classified by 3 ways. How many ways? 3 ways. First one is non-current assets, second one is current assets, and third one is fictitious assets. So first of all discuss about the non-current assets. Non-current assets basically mentioned or calculated into the time period. See beta, non-current assets are identified on the basis of the time period. Non-current assets are identified on the basis of the time period. Non-current liability जो थी उसका time period हमारा कितना था? More than the 1 year.
सेम एज इट इज नॉन करंट असेट्स का भी हमारा टाइम पीरियड जो होता है वो कितना होता है बेटा, इट इज आल्सो मोर देन दी 1 ईयर, बोथ आर सेम, बट उसको हम कहते थे लायबिलिटी और इसको हम कहते हैं असेट्स। असेट्स विद इन अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, असेट्स within a period of more than the 1 year, that is called non current assets। सी बेटा यहाँ पर मैंने एक टॉपिक डाल के लिखा है, it is also known as long term or fixed assets। उसके मैंने दो आपके पास यहाँ पर नेम लिखे हैं, क्या नेम लिखे हैं, it is also known as long term assets and fixed assets, it is also known as long term assets and फिक्स्ड असेट्स। ओके, उसके एग्जांपल्स देने हो तो क्या हो सकते हैं, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, गुडविल, ट्रेडमार्क्स, फर्नीचर, पेटेंट, प्लांट, वो सब एग्जांपल्स आपके पास नॉन करंट असेट्स के हैं। ऐसी असेट्स जिसका टाइम पीरियड 1 साल से ज्यादा तक का हो, वो सारी असेट्स को हम नॉन करंट असेट्स कहेंगे। Non-current assets there are the two subtypes. First one is a tangible and second one is a intangible. Non-current assets के यहाँ पर दो types है, पहला आपके पास है tangible, दूसरा है आपके पास intangible। तो tangible को हम बोलते हैं तो कैसे देखते हैं, tangible का मतलब तो देखते हैं, tangible assets are those assets which having a physical existence। Tangible assets are those assets which having a physical existence and it can be seen and touched, it can be seen and touched। Tangible assets का physical existence होना चाहिए, ऐसी सारी assets जिसका physical existence हो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, tangible assets। Otherwise in the simple word we can say also tangible assets are those assets it can be seen and touched, it can be seen and touched। वो सारी assets जिसको हम देख सके, जिसको हम टच कर सके, वो सारी assets को हम कहते हैं tangible assets। वो सारी assets को क्या कहते हैं बेटा, tangible assets। by example building, building को हम टच कर सकते हैं, then furniture को भी टच कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, then land, machinery, etc etc etc, that is called tangible assets। इसका पूरा रिवर्स नेगेटिव हो जाएगा आपके पास intangible assets। Intangible assets are those assets which having no physical existence, which having no physical existence, जो physically उसका कोई existence ही नहीं है, वजूद ही नहीं है, उसको हम intangible assets कहते हैं। It cannot be seen and touched, it cannot be seen and touched। ऐसी assets जिसका कोई physical existence ना हो, जिसको हम देख ना सके, जिसको हम टच ना कर सके, वो सारी assets को हम कहते हैं intangible assets। वो सारी assets को हम क्या कहते हैं बेटा, intangible assets। ओके, तो intangible assets जो है उसके हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, गुडविल एंड पेटेंट। अगर आप लोग कोई सीरियल देख रहे हो या तो कोई मूवी देखते हो ना, तो यूटीवी प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड, फिर उसका लोगो, उसके ऊपर ऐसा कुछ लिखा होगा कॉपीराइट का, स्मॉल सी और सर्कल के अंदर वायाकॉम मोशन, वायाकॉम मोशन, उसके ऊपर देखना ऐसे टी लिखा हुआ है, टीएम ट्रेडमार्क, उसको कहते हैं ट्रेडमार्क। वो कॉपीराइट का एक्ट होता है, उसके अंदर वो लोग रजिस्टर्ड किए होते हैं। ट्रेडमार्क का भी क्या होता है, एक्ट होता है, उसके अंदर भी हमारा ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होना चाहिए, लोगो। उन सबको हम कह सकते हैं बेटा, क्या कह सकते हैं हम, intangible assets, intangible assets। Okay, the next one, the second type of classification, that is called current assets। तो नॉन करंट असेट्स का डेफिनेशन था असेट्स विद इन द पीरियड ऑफ मोर देन दी 1 ईयर। तो करंट असेट्स का आपका डेफिनेशन क्या होगा, असेट्स विद इन अ पीरियड ऑफ लेस देन दी 1 ईयर, असेट्स विद इन अ पीरियड ऑफ लेस देन दी 1 ईयर, जो 1 साल से कम
तक, माने कि 1 साल से कम या तो पूरा 1 साल जो असेट्स हमारे पास रहती है उसको हम कहते हैं करंट असेट्स। इट इज ऑल्सो नोन एज शॉर्ट टर्म असेट्स। इट इज ऑल्सो नोन एज शॉर्ट टर्म असेट्स लाइक कैश। कैश हमारे पास आज है उतनी ही कल होगी, ऐसा फाइनल नहीं है, कभी बढ़ भी सकती है कभी कम भी हो सकती है। इट्स इज अ फ्लक्चुएटिंग ऑर्डर, उसको हम कहते हैं करंट असेट्स। कैश एंड बैंक बैलेंस, स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल्स एक्सेट्रा, ये दो वर्ड आपको नए दिखेंगे, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। इसका आगे आपको उसके टर्मिनोलॉजी आएगी तब मैं आपको डीपली उसका डिस्कशन करूंगा। बट करंट असेट्स का आपको एग्जांपल पूछा जाए तो आपको याद रखना है कैश बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस बैंक बैलेंस, स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल्स, जिसका टाइम पीरियड 1 साल से कम हो, वैसी सारी असेट्स को हम करंट असेट्स कहेंगे। ओके, देन आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट द लिक्विड असेट्स। नेक्स्ट वन इज लिक्विड असेट्स। ओके, तो लिक्विड असेट्स क्या है बेटा? तो जो भी सारी हमारे पास करंट असेट्स है उसमें से हमें एक चीज को एक्सक्लूडिंग करना है, ध्यान में नहीं लेना है, वो है स्टॉक। तो डेफिनेशंस हमारी बन गई, क्या बन गई? All current assets excluding stock is called liquid assets. All current assets excluding stock. Stock के अलावा सारी सब current assets वो हमारी बन जाएगी बेटा liquid assets. Liquid assets का एक्चुअल में मतलब ये होता है कि ऐसी assets जिसको हम फास्टली कन्वर्ट कर सके in cash. Those assets are converted into the cash very speedy. वेरी फास्टली, उसको हम कहते हैं लिक्विड असेट्स। उसके अंदर सब करंट असेट्स इंक्लूडिंग होती है बट एक ही नहीं होती है, एक्सक्लूडिंग स्टॉक। स्टॉक को आपको एक्सक्लूड कर देना है। देन आफ्टर रियल असेट्स, रियल वर्ड तो हमें भी पता है आपको भी पता है, जिसका रियलाइजेबल वैल्यू हो, रियल में वो चीज हो, उसको हम कहते हैं रियल असेट्स। रियल असेट्स मींस assets that have value in reality, assets that have value in reality, reality के अंदर उस assets की value होनी चाहिए, realizable value होनी चाहिए। This means it has realizable value. This means it has realizable value. ऐसी सारी assets जिसकी realizable value हमें मिल सके, जिसको हम बेचने जाए तो उसके सामने उसका कोई value हमें मिल सके, वो सारी assets को हम कह सकते हैं real assets. Real assets means assets that have value in reality. Reality में जो उसकी value होती है, जो भी कोई assets की value होती है, उसको हम कहते हैं real assets. It means this means it has realizable value. This means it has realizable value. उसका realizable value हमें मिलना चाहिए, उसको हम कहते हैं रियल असेट्स। बेटा ये थोड़ा डीपली कंसेप्ट है, एक्चुअली यहाँ पर आपको थोड़ा बाउंस जाएगा ये फिक्टिशियस असेट्स, मैं पहले से बोल देता हूँ। तो फिक्टिशियस असेट्स ध्यान से और गौर से समझना, अगर नहीं पता चले तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप पार्ट 2 में आओगे ना तब अपने आप आपको भी थोड़ा आइडिया आ जाने लगेगा कि फिक्टिशियस असेट्स है क्या। यहाँ पर इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ओके, फिक्टिशियस असेट्स ध्यान से आराम से। फिक्टिशियस असेट्स डू नॉट हैव फिजिकल फॉर्म, अदरवाइज फिजिकल एग्जिस्टेंस। ऐसी असेट्स है जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस ही नहीं है, फिजिकल कोई वजूद ही नहीं है, फिजिकल फॉर्म में ही नहीं है। दूसरी बात, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द फिक्टिशियस असेट्स इज 0। रियलाइजेबल वैल्यू उसकी क्या होती है बेटा? 0 होती है। अगर उसका रियलाइजेबल वैल्यू होता तो वो रियल असेट्स बन जाती। इसका रियलाइजेबल वैल्यू है ही नहीं, रियलाइजेबल वैल्यू 0 है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द फिक्टिशियस असेट्स। हां, दिस इज नॉन रिकरिंग expenses. This is non-recurring expenses. ये non-recurring expense है. It is called assets, but it is our expenses. Okay. The expense benefit of this is more than the 1 year. The benefit of this expense is more than the 1 year. ऐसे expenses जो एक बार हम करते हैं, but उसका benefit more than the 1 year के लिए हमें मिलता है, तो उसको हम कहते हैं
फिक्टिशियस असेट्स, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, फिक्टिशियस असेट्स। मान लीजिए जब कोई कंपनी अपने शेयर इश्यू करती है बाय द डिस्काउंट, वो डिस्काउंट बेटा 1 साल का नहीं होता है, वो डिस्काउंट बहुत सारे साल का होता है। तो the expense which is turned for the more than the 1 year, otherwise the benefit of this expense which is the more than the 1 year, it is called the fictitious assets. There is a no realizable value, it is a no physical existence, that is called fictitious assets. Examples याद रखना बहुत ही important है, share discount, debenture discount, preliminary expenses. Share discount, debenture discount and preliminary expenses. तीन चीज याद रखना, मुझे 6 नाम पता है बट आपको मैं 3 ही बोल रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि उतना ही आपको कोर्स में अभी आ रहा है, थोड़ा डीप में ले जाऊंगा तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। सो fictitious assets, फिर से हम एक बार देखते हैं तो क्या बोला है, fictitious assets do not have physical existence, do not have physical form. Okay, realizable value of fictitious assets is 0. This is non-recurring expenses. This is non-recurring expenses. The benefit of this expenses is more than the 1 year. It is called fictitious assets. It is called fictitious assets. By example, there are the 3 different examples is here. First one is share discount. Second one is debenture discount. And third one is preliminary expenses, and third one is preliminary expenses. Okay, next topic है receipts. Receipts माने कि क्या है, when money is received due to consequences of business transaction. बिजनेस ट्रांजैक्शंस हुआ, उसके हिसाब से बिजनेस ट्रांजैक्शंस होने से, उसके कंसेक्वेंसेस से आपको यहाँ पर मनी रिसीव्ड होता है, दैट इज कॉल्ड रिसिप्ट्स, दैट इज कॉल्ड रिसिप्ट्स। क्या होती है बेटा डेफिनेशन, व्हेन मनी इज रिसीव्ड ड्यू टू कंसेक्वेंसेस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन is known as receipts. When money is received due to consequences of business transaction is known as receipts. कोई भी business transactions होने से हमें पैसा मिलता है, money received होता है, उसको हम कहते हैं receipts. There are the 2 category of the receipts. First one is the capital receipts and second one is the revenue receipts. So capital receipt क्या है बेटा, receipt माने कि amount received होना. When amount is received by one time but that benefit is received, that benefit is more than the 1 year. That benefit is more than the 1 year. That is called the capital receipts. It is not received by regularly. It is not received by regularly. ऐसी सारी रिसिप्ट्स जो हमें रेगुलरली नहीं मिलती है सिर्फ एक बार, बट उसका जो बेनिफिट होता है वो मोर देन दी 1 ईयर होता है, उसको हम कहते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स। बाय एग्जांपल सेल ऑफ फर्नीचर, सेल ऑफ असेट, कोई भी असेट्स को आप बेचो, लाइक फर्नीचर बेचो, लैंड बेचो, फिर बिल्डिंग बेच डालो, मशीनरी बेचो, प्लांट बेचो, कुछ भी फिक्स असेट्स को हम जब बेचते बेटा तो हम रेगुलरली उसको नहीं बेचते, हम एक ही घर के अंदर रहते हैं माने कि 10 या 15 साल तक, फिर हम क्या करते हैं, हमारा घर या तो चेंज करते हैं या तो फिर उसके अंदर रिनोवेशंस करते हैं। तो वो जो हम जब घर बेच रहे हैं तब हमें जो पैसा मिलता है ना, इट इज रिसीव्ड फॉर द वन टाइम बट दैट बेनिफिट रिसीव्ड फॉर द मोर देन द 1 ईयर। So that type, same as it is in the business, some receipts are received for the one time but that benefit is more than the 1 year, that is called the capital receipts. It is received, it is this receipts are not received regularly, this receipt are not received for regularly. ये ऐसे receipts है जो हमें regularly नहीं मिलती है, और जो regularly हमें मिलती है उसको हम कहते हैं revenue receipts. Revenue receipts means which receipts received regularly. The flow of this receipts is remain constant. The flow of this receipts is remain constant. ऐसे receipts जो हमें regularly received होती हो, like the बैंक से हमें interest मिलता है, अगर हमने हमारी कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दी है तो वहाँ से हमें रेंट मिलता है, डिस्काउंट मिलता है,
वो रेगुलरली नेचर में हमें यहाँ पर क्या होता है बेटा, रिसीव्ड होता है, कमीशन मिलना, ब्रोकरेज मिलना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. So that is called revenue receipts. That is called revenue receipts. जो ऐसे रिसिप्ट्स है जो हमें रेगुलरली हमारे नेचर में से कि बिजनेस नेचर से हमें मिलती है, एंड द फ्लो ऑफ दिस रिसिप्ट्स इज रिमेन कांस्टेंट. और इसका फ्लो जो होता है ना वो रिमेन कांस्टेंट ही होता है, रेगुलर, ईच एंड एवरी डे some rupees received by any of the reasons of the regular nature of business transactions, that is called the revenue receipts. So today, right now, our lecture is completed. Today we will discuss about the 18th terminology. First one is business transactions. There are the two types of business transactions, economic, non-economic. उसके बाद बेटा सेकंड होता है इवेंट, थर्ड होता है कैपिटल, फोर्थ होता है हमारे पास drawings. When drawings is increased, so drawings is indicate capital reduction. drawings के बाद आता है बेटा liability. liability के अंदर बेटा दो टाइप्स है, फर्स्ट है इंटरनल, सेकंड वन इज एक्सटर्नल. इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों के अंदर दो सब टाइप्स आते हैं. एक आता है हमारे पास नॉन करंट, दूसरा आता है हमारे पास करंट. उसके बाद हम बात करें तो यहाँ से assets are classified into the three ways. First one is non-current, second one is current, and third one is fictitious. So first of all the non-current assets जो होती है उसके अंदर दो टाइप्स है. पहला है intangible, पहला tangible, दूसरा intangible. नॉन करंट के बाद आता है बेटा करंट असेट्स, फिर होता है लिक्विड असेट्स. लिक्विड असेट्स क्या होता है, ऑल द करंट असेट्स आर इंक्लूडेड बट एक्सक्लूडेड, ऑल द करंट असेट्स बट एक्सक्लूडिंग स्टॉक, दैट इज कॉल्ड लिक्विड असेट्स. लिक्विड असेट्स which is can those assets which can be easily converted into the cash, it is also known as the liquid assets. उसके बाद आता है रियल, उसके बाद फिक्टिशियस, उसके बाद आया बेटा रिसिप्ट्स. रिसिप्ट्स के दो पार्ट्स, कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स. तो आज हम यहाँ पर हमारा लेक्चर कंप्लीट करते हैं. वी विल मीट ऑन नेक्स्ट वर्चुअल क्लास and we will discuss about our next terminology, and that lecture we will complete our the chapter number 1. Okay friends, bye.